এই হলো ডেডলাইন কমিউনিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড। আপনারা দেখছেন এক্সপ্রেস নিউজ, খবর নেয়, খবর দেয়। নমস্কার, এক্সপ্রেস নিউজে আপনাদের স্বাগত। আর আজ শনিবার বিকেল 4টে, মানে আপনাদের প্রিয় প্রোগ্রাম। হ্যাঁ, আমি প্রিয় প্রোগ্রাম এই কারণেই বলছি, কারণ এটা যেহেতু আপনাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে কথা বলে, স্বাস্থ্য নিয়ে সচেতন করে, তাই এটা অত্যন্ত আর 5টা অনুষ্ঠানের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তবে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে, আমাদের এই প্রোগ্রামটার নাম হচ্ছে হেলথ এক্সপ্রেস, তাই হেলথ এক্সপ্রেসে আলোচনা হয় স্বাস্থ্য নিয়ে। আজকের আলোচনার একদম একটু স্বতন্ত্র ধরনের, আমরা বলেছি প্রত্যেক সপ্তাহে একটু আমরা বৈচিত্র্য রাখতে চাই। একটু বৈচিত্র্য বলতে আজকে এমন একটা বিষয় নিয়ে, আপনারা হয়তো এটা বিষয়টা হয়তো খেয়াল করেন, কিন্তু অনেক সময় খেয়াল করতে পারেন না। কীরকম বলি, কখনো আপনাদের কোনো একটি সমস্যা হয়েছে, ডাক্তারবাবু একটা রিপোর্ট করতে লিখে দিয়েছে, কি এক্স রে অথবা আলট্রাসোনোগ্রাফি, এমআরআই। আচ্ছা, এই যে পরীক্ষাগুলো যখন করেন তখন ভাবেন, আপনারা কখনো ভাবতেই পারবেন না যে এর পেছনে একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের মতামত আছে, অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আর সেই রেডিওলজিস্ট, যাদেরকে বলে রেডিওলজিস্ট ডাক্তার, যারা আপনাদের এই সমস্ত পরীক্ষার একদম চুলচেরা বিশ্লেষণ করে রিপোর্ট তৈরি করে, যে রিপোর্টের ভিত্তিতে কিন্তু পরবর্তী চিকিৎসাগুলো শুরু হয়। তা আজকের আমার এই অনুষ্ঠানের অতিথি হিসাবে পেয়েছি শরণ্যা ভরদ্বাজকে। নমস্কার। যে আজ আমরা এমন একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব, রেডিওলজিস্ট। হ্যাঁ, एक्चुअली आपको पहले बता सकता हूँ, मुझे एक बात बताइए, ये क्या है रेडियोलॉजिस्ट? आम आदमी वो कैसे समझे इसको, मैंने सरलता से बताइए थोड़ा। हाँ सर, हम लोग एमडी डीएनबी डॉक्टर्स हैं और हमारी स्पेशलिटी में हम लोग सारा चीज़ जांच करते हैं। मतलब पेट से लेकर के हमारे जो है ब्रेस्ट इमेजिंग, फिर सीटी स्कैन, हेड, सब कुछ हम लोग जो है पूरा बॉडी का इमेजिंग कर सकते हैं आज के ज़माने में। और हम लोग एक एक टेंडन, आर्टरी, मतलब छोटे छोटे ब्लड वेसल्स कुछ भी हो, वो हम लोग रेडियोलॉजी के थ्रू आज हम लोग देख सकते हैं। तो क्या है, दिस इज़ व्हाट इज़ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। तो हम लोगों के पास वी हैव द एविडेंस कि ये चीज़ है सर, तो आप उस डायरेक्शन में ही अपना लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पहले क्या होता था, 4 चीज़ें होती थी, उनमें होता था कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। नाउ द एडवेंट ऑफ रेडियोलॉजी हैज़ मेड इट सो क्लियर एंड ऑब्वियस कि हाँ सर, पेट में दर्द है, गॉल ब्लैडर में पत्थर है, इसकी वजह से सर पेट में दर्द है, या फिर अपेंडिक्स है, इसकी वजह से। सर्जन का पूरा क्लियर हो जाता है माइंडसेट कि हमें गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करना है। उस तरह से पेशेंट को बताया जाता है। क्लैरिटी है, हमने क्लैरिटी लाया है। हम लोग आई ऑफ द डॉक्टर्स हैं, तो दैट इज़ व्हाट वी आर द आई। सो हम लोग हॉक आई से वी हैव टू स्कैन एवरीथिंग लाइक शेरलॉक होम्स, वी हैव टू लुक कि व्हाट इज देयर, क्या हो रहा है বডি মে। একদম খুব সহজ কথায় যেটা বলতে হয় সেটা হচ্ছে, আপনারা যখন একটা ডাক্তারের কাছে, স্পেশালাইজ একজন ডাক্তারের কাছে গেছেন, আপনার পেটে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে, কিন্তু এর কারণটা কি আপনি কিন্তু জানতে পারছেন না। ডাক্তারবাবুরা কী করে, অনুমানের উপর আপনাকে একটা ওষুধ লিখে দেয়, যেটাকে দাওয়াই বলে, একটা অনুমানের উপর লিখে দেয়। কিন্তু তারপরে যখন সেটা থেকে ঠিকঠাক রিপোর্ট পাচ্ছে না, তখন ডাক্তারবাবুরা একটা নিশ্চিত পরীক্ষার জন্য লিখে দেয়।
সেই পরীক্ষা যখন হয় তার যে রিপোর্ট, তার যে পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে কি পাওয়া যায়, আপনারা তো রিপোর্টটা নিয়ে চলে আসেন ডাক্তারবাবুকে দেখাতে, কিন্তু কখনো কি খেয়াল করেছেন সেই রিপোর্টটা যিনি তৈরি করেন তিনি কিন্তু একজন ডাক্তার, এবং সেটা দেখবেন একদম তলায়, रिपोर्टेर तलाय एक जन डाक्तार सिग्नेचर भी रहता है, उसके एकदम नीचे सिग्नेचर रहता है कि जिम्मेदारी ओन है। हाँ, जिम्मेदारी যে আপনার সবচেয়ে বড় কথা যে আপনার পেটে ব্যথার কারণটা কি, আপনার কোথাও কি আপনার সমস্যার পেটের মূল কারণটা দেখে এবার ওই রিপোর্টটার ভিত্তিতে কিন্তু একজন ডাক্তার চিকিৎসা করবে। সবচেয়ে আপনার আরও একটা প্রশ্নতে যাব, যে প্রশ্নগুলো আমি এই কথাগুলো আপনাদের সঙ্গে বলছি কারণ ম্যাম বেশিরভাগটা কমফোর্টেবল হচ্ছে উনি হিন্দিতে বলে, আর আপনাদের সুবিধার জন্য সেটা আমি বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য অবশ্যই আপনাদের সঙ্গে আছি। আজকাল হাসপাতাল में रिसेंटली अस्पताल में जो इस्तेमाल होता है, जैसे आम जो इमेजिंग जो इस्तेमाल होता है, ये क्या है, इसमें क्या फ़र्क है? जैसे एक्सरे हाँ वगैरह वगैरह, इसमें कोई फ़र्क है? हाँ सर, सारे हमारे 2D स्कैन्स होते हैं, 3D स्कैन्स होते हैं और 4D स्कैन्स भी होते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले 2D जो है वो मतलब इनिशियल है, सबसे कम जो है मतलब बॉडी पार्ट को कवर करता है, वो है एक्सरे। कोई भी बोनी पार्ट फ्रैक्चर हो तो सबसे पहले एक्सरे से हम पता कर सकते हैं, डायरेक्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जा सकते हैं। अच्छा, दूसरा चीज़ है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में हम लोग सारा पेट का चीज़ प्रॉपर देख सकते हैं, पर बहुत टाइप का अल्ट्रासाउंड है। तो उसमें जो है हम लोग डॉपलर कर सकते हैं, उसमें हम लोग डॉपलर में सारे ब्लड वेसल्स कहीं पे मतलब फर्स्ट लाइन है, अगर किसी को चोट लगी है, कोई आर्टरी की वजह से ब्लीड हो रहा है कहीं, डॉपलर में पता कर सकते हैं, वस्कुलर सर्जन के पास जा सकते हैं। उसके बाद फिर आता है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड इज मतलब आपको एकदम कराना ही है। उसमें 3 स्कैन्स होते हैं सर, इलाबोरेट कर सकती हूँ मैं, तो वो 3 स्कैन हर प्रेग्नेंट लेडी को कराना चाहिए। जैसे जो कि हाँ, फर्स्ट जो होता है वो एंटीनेटल अल्ट्रासाउंड होता है। उसमें जैसे ही आपको पता चले तो क्या आपकी प्रेगनेंसी गर्भदानी के अंदर है, यूट्रस के अंदर है या बाहर है। बहुत 99% केस में यूट्रस के अंदर होती है, पर 1% केस में ओवरीज में हो सकती है या फिर पेल्विक कहीं पे हो सकती है। तो वो पहले पता कर लेना है ताकि बाद में जाके वो फट ना जाए उस जगह से। एकदम हमने उसको वैसे बचा लिया पहले एंटीनेटल अल्ट्रासाउंड करके कि आपका गर्भधानी में सेफ प्रेगनेंसी है, इतना वीक का है, खुशी से गए लोग। फिर हम लोग आपको करते हैं सेकंड जो है टीफा। टीफा इज 20 वीक में आपको कराना है, 19 to 20 वीक्स। टीफा में क्या है, हम लोग बच्चा का ग्रोथ देखते हैं, सारे हम लोग ब्रेन से लेकर के किडनीज डेवलप हुई है कि नहीं, हम लोग उसके सारे ऑर्गन्स देखते हैं, बोन का लेंथ देखते हैं कि सही तरह से, जिस तरह से हमारा चार्ट है एज अप्रोप्रिएटनेस बोलते हैं उसको, कि शॉर्ट फॉर जेस्टेशनल एज तो नहीं है, बच्चा का ग्रोथ सही है, सब देख करके बता देते हैं। उस समय भी अगर हमें कुछ ऐसा मिले जिसकी वजह से हमें प्रेगनेंसी लगे कि डाउन सिंड्रोम हो सकता है, कुछ हो सकता है, बच्चा ऑटिस्टिक आजकल बहुत प्रॉब्लम, एकदम एकदम हम लोग वो बचाते हैं। तो आपको पहले ही बता दिया, देखिए आपके पास अभी टाइम है, 20 वीक है, आप मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर सकते हैं क्योंकि ऑटिज्म होने का चांसेस रहता है। पर ये हम लोग पूरा खुद पे नहीं, हमें दो मतलब ट्रिपल मार्कर, डुअल मार्कर हम लोग एनालिसिस करने के बाद भी वी कैन कंफर्म इट। तो दिस इज द सेकेंड स्टेज। यहाँ से पास हो गए प्रेगनेंसी, तो 20 वीक में सेकेंड अल्ट्रासाउंड कर दिया। फिर थर्ड अल्ट्रासाउंड वी डू ऑन लाइक जो है हमारा ग्रोथ स्कैन। ग्रोथ स्कैन में हम लोग क्या देखते हैं, सब कुछ मतलब बढ़िया से प्लेसेंटा, अब क्या आता है प्लेसेंटा, थर्ड ट्राइमेस्टर में सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो बच्चा को सपोर्ट करने वाला प्लेसेंटा है वो सही जगह पे है कि नहीं। वो अगर क्या होता है आगे चला जाता है तो प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं, उससे जो है जब आप नॉर्मल डिलीवरी कराते हैं तो ब्लीड होने का बहुत चांसेस रहते हैं, तो वो सब हम लोग देख देते हैं। प्लस बच्चा टेढ़ा हुआ क्या वापस घूमता है, बच्चा घूमते रहता है तो वो आगे, प्लस उसके बाद फिर उसका फ्लूइड, जो उसका फ्लूइड है वो कितना है, उसका इंटरनल फ्लूइड हाँ, अगर वो ज़्यादा हो जाता है तो प्रॉब्लम है, कम हो जाता है तो प्रॉब्लम है। तो पेशेंट को दर्द रहता है, मतलब कम फ्लूइड है तो बच्चा जो है फ्रिक्शन होगा, थोड़ा दर्द ज़्यादा हो जाता है, वो सब गायनेक फिर ट्रीट कर सकती है। ये हमारा
आस्तीन रहता है, मतलब ये मस्ट है, कराना चाहिए। इससे মানে- हम लोग बहुत प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। তো, যারা শুনছেন তারা জানেন ডাক্তারবাবুরা আলট্রাসোনোগ্রাফি করেন, অনেকে ভাবেন এটা বোধহয় ডাক্তাররা ইচ্ছা করে করছেন আপনাদের খরচ বাড়াবার জন্য, আসলে তা নয়। আপনার গর্ভে যে বাচ্চাটা রয়েছে, অন্তঃসত্ত্বা মায়ের গর্ভে যে বাচ্চাটা রয়েছে, তার প্রতি মুহূর্তের একটা ওয়াচ থাকে। অনেক সময় আমরা না ডাক্তারবাবুর এই ছোট্ট ছোট্ট রিকোয়েস্টগুলো আমরা যখন করেন, ডাক্তারবাবু অনেকটা ভেবে করেন, এটা ভাবার দরকার আছে। কারণ আপনার বাচ্চা কি অবস্থায় আছে সেইটা জানার একটা বড় মাধ্যম হচ্ছে আলট্রাসোনোগ্রাফি, এবং আমার মনে হচ্ছে যে এইটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, যেহেতু এই সময় অটিজমের সংখ্যা বাড়ছে, অ্যাডনর্মাল বাচ্চা প্রচুর সব হচ্ছে, রোক सकते हैं सर। সেই জায়গায় রোকার একটা বড় জায়গা রয়েছে এখানে, যে এই অবস্থায় আগেও আপনি একটা ডিসিশন নিতে পারেন। তারপরের কথা হচ্ছে, আরও একটা কথা হচ্ছে যে বাচ্চাটা কি অবস্থায় আছে এবং আপনি আদৌ ডেঞ্জার জোনে আছেন না একদম সুরক্ষিত জোনে আছেন, এটাও খুব সুন্দর। আরেকটা বিষয় দেখুন, শুধুমাত্র এই দুটো আপনারা ভাবছেন আলট্রাসোনোগ্রাফি বা রক্তের ব্লাড চেকিং এতেই ডাক্তারের শেষ নয়, আরও আছে। এমআরআই ক্ষেত্রে একটা তো বড় ভূমিকা রয়েছে। हाँ, उसके बाद फिर लाइक MRI इन प्रेगनेंसी पूछ रहे हो या MRI एज अ होल पूछ रहे हो? এমআরআই অ্যাজ এ হোল। हाँ, तो वी हैव देन 3D स्कैन्स। तो 3D में CT एंड MRI। MRI इज वेरी, मतलब एक एक एनाटॉमी ऑफ द बॉडी वी कैन सी, टेंडन से लेकर के एकदम। आर्टरी से लेकर के एनीवेयर यू हैव प्रॉब्लम एंड द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। द मेन थिंग इज कि MRI में हम लोग इतना कंफर्म हो जाते हैं कि हम लोग उसका कॉज बता सकते हैं, सर इसकी वजह से नहीं, इसकी वजह से हो रहा है। लाइक स्पाइन है, सबसे ज्यादा स्पाइन और ब्रेन Spine, करते हैं। एकदम। तो स्पाइन में मैं बताती हूँ, स्पाइन में बूढ़ापे के बाद बहुत लोगों को एक कंप्रेशन फ्रैक्चर आता है, क्योंकि वो कैल्शियम का कमी है या फिर मतलब बॉडी में मेटाब सही नहीं चल रहा है, तो उसकी वजह से वो कंप्रेशन होता है और डिस्क बाहर निकल जाती है। उससे काफ़ी पीड़ित रहते हैं, सबकी कमर दर्द हो रही है, नेक पेन हो रहा है, सब कुछ हम लोग बता सकते हैं कि क्या रीज़न है, किस लेवल पे रीज़न है, क्या मतलब वो सब हम लोग बता सकते हैं। तो समस्या की जड़ में, समस्या की जड़ बता जड़ सकते में हैं, जाता जड़ है। बता सकते हैं। तो क्या है, एकदम क्लैरिटी मिल गया, हमें ये स्पाइन सर्जन के पास जाना है, हमें इस जगह पे अपना डिसेक्टोमी करा लेना है और फिर समस्या हल हो जाएगी। जैसे लिगामेंट की जो है, लिगामेंट की ligaments। जगह कोई किसी को फ्रैक्चर हो गया, हाँ। उसके बाद लिगामेंट का स्थिति क्या हाँ। है, ये भी तो बता जी, सकते। फ्रैक्चर में तो बहुत सारी चीजें, मतलब एक नॉर्मल फ्रैक्चर होता है और एक होता है जो फ्रैक्चर आप एक्सरे पे नहीं बता सकते, एकदम, तो एकदम। वो MRI पे आप बता सकते हैं। ऑकल्ट फ्रैक्चर इनसफिशिएंसी फ्रैक्चर उसको बोलते हैं, वो हम MRI पे बता सकते हैं। फिर लिगामेंट्स, हर जगह पे लिगामेंट्स जुड़ी हुई है, टेंडन्स मसल से जुड़े हुए हैं, तो वो सब भी रप्चर होने का हम लोग MRI पे बता सकते हैं। प्लस MRI बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्ट्रोक पेशेंट। स्ट्रोक मतलब जिनको मतलब ब्रेन में इंफाक्ट हो गया हो, उनको पैरालिसिस हो रहा हो, वो बहुत ही ज़्यादा डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग बोलते हैं उसको, हम लोग उस पर एकदम हाइपर एक्यूट, मतलब 90 मिनट्स में हम लोग बता सकते हैं कि सर ये जो है इस पार्ट ऑफ एरिया ऑफ ब्रेन जो है वो इन्फाक्ट हो गया है, डेड है। इससे हम लोग क्या है, थ्रोम्बोलाइसिस जो सर्जन करते हैं या जो भी हमारे रीपरफ्यूजन डील करते हैं वो हम बता सकते हैं। प्लस उसमें ब्लीड है कि नहीं, आपको थ्रोम्बोलाइज करना चाहिए कि नहीं, और क्या उसका और भी मतलब कहाँ कहाँ ब्लीड है, मतलब ब्रेन में ब्लड आ गया है, वेंट्रिकल में आ गया है, कहाँ कहाँ है, हम लोग सब कुछ बता सकते हैं। ब्रेन के बारे में तो इट्स द बेस्ट मोडालिटी, वी कैन टेल एवरीथिंग अबाउट इट। অ্যাক্সিডেন্ট जो रोड पे Accident, बड़ा हाँ। बड़ो ধরনের কোনো যখন অ্যাক্সিডেন্ট হয়, बड़ा एक्सीडेंट जब होता है, हाँ। सर के जैसे कोई बच्चा गिर गया, सर पे चोट लगा, तब जानने के लिए तो एकदम MRI मस्ट भी, सर सबसे पहले CT कराना चाहिए, सीटी कराना क्योंकि चाहिए। सर MRI में 20 से 25 मिनट लगता है हाँ। और हमें जो है जल्दी बता देना है, अच्छा, क्योंकि अच्छा। कोई ट्रॉमा से आया है तो उसका क्या क्या फ्रैक्चर है, ब्लीड कितना है, उसका ब्रेन का कंडीशन क्या है, तो हम लोग CT तुरंत करके CT हेड में हम लोग मैक्सिमम चीज़ें बता सकते हैं। अगर ट्रॉमा है तो CT इज़ फर्स्ट लाइन, क्योंकि CT इज़ वेरी रैपिड, इट विल बी डन इन सेकेंड्स। আপনারা দেখছেন হেলথ এক্সপ্রেস। আজকে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে সেটা কিন্তু একমাত্র যে হসপিটালটির কথা বলবো সেটা হচ্ছে আপনাদের হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটাল আসানসোল,
একদম পরিকাঠামো, সর্বোত্তম পরিকাঠামো নিয়ে কিন্তু আসানসোলের বুকে রয়েছে বলাই যেতে পারে। উত্তরবঙ্গে যে কজন ভালো হাসপাতাল আছে এই মুহূর্তে যদি বলা যায়, সেটা কিন্তু অবশ্যই হেলথ ওয়ার্ল্ড একটা পরিকাঠামো নিয়ে এসছে, যেটা আপনি বাংলা কেন, আন্তর্জাতিক মানে বাংলার বাইরে যে সমস্ত রাজ্য আছে তার থেকেও কিন্তু হেলথ ওয়ার্ল্ড কম নয়। এখানে সমস্ত পরিকাঠামো অত্যাধুনিক এবং মানুষের সেবার জন্য এখানে আনা হয়েছে। যে रेडियोलॉजिस्ट ये जो डिपार्टमेंट है हेल्थ वर्ल्ड में कैसा है? सर मैं मतलब अभी मेरा 4 जगह काम कर लिया मैंने। यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, सारे मोडालिटीज़ अवेलेबल है। इनफैक्ट आसनसोल में पेट जो है न्यूक्लियर मेडिसिन वो मुझे लगता है कि हेल्थ वर्ल्ड में ही अवेलेबल है। प्लस हमारे जो है 4D अल्ट्रासाउंड्स भी हैं, यानी कि हम लोग वाइल डूइंग प्रेगनेंसी स्कैन्स हम लोग बेबी का फीटस का फेस बना के आपको दे सकते हैं। आप बेबी का पहले ही फेस दे सकते हो, मम्मी पे गया पापा पे गया बिफोर कमिंग आउट ऑफ द वomb। ও মাই গড, এটা 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 যেটা বললো সেটা কিন্তু একদম চমৎকার কথা, যেটা হচ্ছে যে আপনি এমন একটা পরিকাঠামো নিয়ে আসছে যেটাতে আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার সন্তানের আকৃতি অর্থাৎ মুখের আকৃতি কার মতো হচ্ছে, বাবার মতো না মা হতে। এটা তো একটা রেনেসাস অফ মেডিকেল। या हाँ? we have developed like this, मतलब मतलब फास्टेस्ट प्रोग्रेसिंग एकदम। अच्छा, रेडियोलॉजी निदान के दौरान रोगी को क्या सुरक्षा देते हैं? रोगी को सर सुरक्षा तो हम लोग मतलब निदान मतलब ट्रीटमेंट सर ट्रीटमेंट वाइज तो हमारा जो फील्ड है सबसे पहले जो अल्ट्रासाउंड, अभी मैंने सारा डायग्नोसिस बताया, अभी हमारा इंटरवेंशन आता है सर। रेडियोलॉजी में दूसरा पार्ट है इंटरवेंशन। तो हम लोग सब कुछ मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी करते हैं। मिक्स इज व्हाट पीपल वांट। अभी उनको सर्जरी का बड़ा बड़ा स्कार नहीं चाहिए, तो वी आर डूइंग दैट। अपसेस ड्रेनेज से लेकर के बायोप्सी से लेकर के छोटा FNAC, थायराइड में कैंसर है या नहीं है ये पता करना है, सब हम लोग करते हैं सर। उसके बाद फिर अगर लीवर में कोई मतलब स्टेंट डालना हो तो मान लो आपको ऑपरेटिव वे में नहीं डाल सकते, कॉम्प्लिकेटेड है, वो ट्यूमर से ग्रस्त है, तो वो स्टेंट वाया इमेज गाइडेड हम लोग कर सकते हैं। प्लस अगर आपका मतलब ट्यूमर है और लंग में कई बार हमें हर तरह से पता नहीं चलता है कि ये ट्यूमर है क्या है, ब्रेन में ऐसा, तो अभी उसको कैसे पता करेंगे? तो हम लोग इमेज गाइडेड बायोप्सी लेते हैं सर लंग का, जो हमारा होता है अल्ट्रासाउंड गाइडेड अगर पीछे पोस्टीरियर में हो, और अगर सेंट्रल में हो तो CT गाइडेड बायोप्सी लेते हैं। वो बायोप्सी आपको कंफर्म कर देगा कि आपको वो जगह को काटना है, निकालना है, या फिर उसको फॉलो अप इमेजिंग करना है बाद में देखना है। यही प्रश्न था कि आपातकालीन चिकित्सा में विशेष रूप से आघात और स्ट्रोक मामले में रेडियोलॉजी का क्या भूमिका है? स्ट्रोक तो सर फर्स्ट लाइन है सर रेडियोलॉजी, हम ही बताते हैं। मतलब आते के साथ डिफ्यूजन कराओ या फिर CT में देख लो, हम बताएंगे सर ये स्ट्रोक है, या फिर पेशेंट बोल रहा है कि चक्कर आ रहा है या फिर गिर गया है, तो बहुत सारा कारण होता है सर, उसमें एक कारण स्ट्रोक है। तो आप एकदम मतलब पूरी तरह से इन्वेजिव ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, तो हम लोग बताते हैं कि सर स्ट्रोक के अलावा कुछ है, मतलब नेगेटिव फाइंडिंग इसको बोलते हैं। मतलब पॉजिटिव तो हर चीज कोई को है, हाँ, पर रेडियोलॉजिस्ट आपको ये बता सकते हैं, या फिर हम लोग इमेज गाइडेड ये बता सकते हैं सर ये प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रोक की वजह से नहीं हुआ है सर, अच्छा किसी और प्रॉब्लम की वजह से हुआ है, मे बी उसको टिनिटस हो रहा हो, उसको कोई नर्व का इंजरी हो रहा हो, ये सब नर्व भी देख सकते हैं सर हम लोग MRI पे। तो MRI पे देखा जाता है। अच्छा, एक बात मैं बोल सकता हूँ, जैसे किसी का कैंसर का बीमारी है, वो चिकित्सा में है, इसका जो कंटिन्यू करने के लिए तो रेडियोलॉजी का एक महत्वपूर्ण क्या भूमिका है इसमें? सर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि सर कैंसर जो है सबसे पहली बात आप एक बार में ठीक नहीं कर सकते, तो आपको एक लॉन्ग टर्म कीमोथेरेपी चलेगा, रेडियोथेरेपी चलेगा। एकदम। कोई कैंसर होता है जो छोटे होते हैं, तो सबसे पहले आता है रेडियोलॉजी में अर्ली डिटेक्शन, मतलब कोई ब्रेस्ट का ऐसा हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं, लेडीज को हम लोग इनकरेज करते हैं कि भाई आप 45 to 50 ईयर ओल्ड हो गए हो, एक बार ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड मैमोग्राफ करा लो। उसमें हम उनको बता देते हैं सर कि सबसे पहले ये कैंसर है या नहीं है, इसका FNAC कराना है नहीं कराना। उसके बाद वो अर्ली डिटेक्शन है, तो बड़ा कैंसर आने से हम लोग ने बचा दिया। अच्छा। दूसरा चीज है हम लोग स्टेज 2 में कितना मार्जिन सर उसका है, कौन कौन से स्ट्रक्चर स्टेज 3 में इन्वॉल्व है सर। अच्छा, तो सर्जन को पता है ये लिखा हुआ है,
मुझे यहाँ तक अपनी मार्जिन अच्छा। बढ़ा करके रिसेक्ट करना है सर। लिम्फ नोड होता है जो लिम्फ को ड्रेन करता है, उसमें सबसे पहले ट्यूमर मटेरियल चला जाता है। एकदम। तो वो ट्यूमर मटेरियल लिम्फ नोड में है या नहीं है हम बताते हैं, कौन कौन सा लिम्फ नोड का स्टेजेस पे है, वो सारे लेवल्स को उनको डिसेक्ट करके रेडिकल लिम्फेडेक्टोमी भी करना पड़ता है। तो वो स्टेज 3 पे, प्लस हम लोग 4 स्टेज, द लास्ट स्टेज भी बताते हैं कि सर अब आपको पेशेंट को टच नहीं करना है, कि अब इतना फैल चुका है कि अच्छा। उसको चाहिए पैलिएटिव ट्रीटमेंट, यानी कि थोड़ा कीमो थोड़ा रेडियो दे दो तो उसका कम हो जाएगा, थोड़ा स्टेंट लगा दो, सिम्टम रिलीव करके उसको 10 मतलब जितना हो सके 10 महीने से 1 साल तक आप रख सकते हैं, ये भी हम बताते हैं। तो उसके बाद सर कीमो रेडियोथेरेपी जब ट्रीटमेंट चल रहा है एकदम तो यही बोल रहे थे। कम, हाँ वो स्टेज डिग्रेड हुआ कि हाँ, नहीं, कम हाँ। हुआ कि नहीं, और प्लस रिसेक्शन के बाद जब आपने कीमो रेडियोथेरेपी दिया उसके बाद वो रिकरेंस है या नेक्रोसिस है, मतलब वो ट्यूमर की वजह से, मतलब जो रेडियोथेरेपी दिया है उसकी वजह से वो जगह डेड हो गई है या फिर वो ट्यूमर वापस आ उसका रहा है। परिस्थिति कहाँ तक है, कितना सुधार गया বা कितना अच्छा हुआ, कितना সবচেয়ে বড় কথা আপনাদের এখান থেকে কিন্তু ডাক্তারবাবু একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বললেন। আমি মায়েদের উদ্দেশ্য করেই বলছি, যাদের বয়স 40 পেরিয়ে গেছে তারা কিন্তু একটু সচেতন হবে, যেহেতু হেলথ এক্সপ্রেস আমাদের প্রোগ্রাম, আর সেই প্রোগ্রামের দৌলতে আমাদের কাছে প্রচুর ফোন আসে, পার্সোনালি कोई बहुत ফোন आता है, যে ফোন আসে রাতের বেলায়। আমি বিশেষ করে বলছি মুর্শিদাবাদ, বহরমপুর, আপনারা যারা বাইরে আছেন তারা ফোন করেন যে একটা ব্রেস্টে একটা ছোট টিউমারের মতো হয়েছে, সেটা শক্ত এবং সেখানে খুব পেন হচ্ছে। আমি বলবো এই অবস্থায় মায়েদের বলবো, যাতে পরিবারের যারা গার্জিয়ান আছে তাদের বলবো একটা ছোট্ট পরীক্ষা কিন্তু এর সমাধান হতে পারে, কারণ চিকিৎসা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে একটা টেস্ট। Prevention is better than cure. একদম এই জায়গায় দাঁড়িয়ে বলবো যে 40 পেরোবার পরে একটা টেস্ট করিয়ে নেওয়া, একটা পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া, এটা কিন্তু খুব একটা, দেখুন আপনারা সকালে খালি পেটে জল খান সারাদিন সুস্থ থাকার জন্য, বা যাদের গ্যাসের সমস্যা আছেন একটা অ্যাসিলক খেয়ে নেন, আমি বলবো কি সারাদিন সুস্থ থাকার জন্য। তাই বাকি জীবনটা সুস্থ থাকতে অবশ্যই 40 পেরোবার পরে একটা এক্সামিনেশন করে নেওয়ার ভীষণ দরকার। আমি পরবর্তী আরেকটা প্রশ্নে যাব। ক্যান্সারের বিষয়ে যখন আসলাম তখন बहुत सारे आदमी है, औरत है जो वहाँ से रे निकलता है, वहाँ से रेडिएशन का डर लगता है, ये कितना सही है, क्या इसमें? सर हमारे सबसे पहले जब हम रेडियोलॉजी फील्ड में जाते हैं तो हमें एक प्रिंसिपल पढ़ाया जाता है, दैट इज नोन एज अलारा, दैट इज एज लो एज रीजनेबली पॉसिबल, वी हैव टू गिव दैट मच अमाउंट ऑफ रेडिएशन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। हम लोग बहुत तरह से हम लोग रेडिएशन कम करने की कोशिश करते हैं, एंड देन वी हैव दिस CTDI, जो सीटी में सबसे ज़्यादा रेडिएशन होता है, पेट सीटी और सीटी में। तो सीटी में सर हम लोग डोज इंडेक्स बनाते हैं, दैट इज CTDI, हम लोग उसको डोज इंडेक्स बोलते हैं। तो वो डोज के बियॉन्ड हम लोग रिस्क बेनिफिट रेशियो देखते हैं सर, कि ये सीटी में करना चाहिए, इससे पेशेंट को फायदा होगा, लाभ होगा, तो ही हम लोग प्रोसीड करते हैं सर। अगर वो रिस्क बेनिफिट रेशियो में पेशेंट को नुकसान हो रहा है ड्यू टू मोर रेडिएशन, फायदा कम हो रहा है, देन वी वोंट डू दैट। सो दैट इज फर्स्ट लाइन ऑफ चेक, दैट वी मेक श्योर, वी इंश्योर दैट कि पेशेंट को ज़्यादा रेडिएशन ना पड़े। एंड देन यू नो देयर आर सो मेनी रेडिएशन जो हमें पता नहीं है। एक कॉस्मिक रेडिएशन है, अर्थ में जो है रेडॉन है, वो यूरेनियम है, अर्थ का वो आता ही रहता है सर, उतना ही मात्रा में एक्सरे में रेडिएशन पड़ता है जितना हमारे कॉस्मिक रेज होते हैं। एंड देन यू फ्लाई द एरोप्लेन ना, वो एरोप्लेन में भी सर रेडिएशन आपको थोड़ा मिल रहा है। जब हम ट्रेन में सफर करते हैं उसमें तो रेडिएशन होता है, ऊपर हाई वोल्टेज रहता है, उसमें तो जैसे इट्स लाइक वेरी एकदम एक्सरे, अल्ट्रासाउंड एंड MRI इज रेडिएशन फ्री सर। আচ্ছা, একদম একদম পরিষ্কার একদম কথা বলছে। আল্ট্রাসাউন্ড এবং এমআরআইতে কিন্তু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া মানে কোনো এফেক্ট হয় না, রেড हम लोग अलग, हम लोग सोनिक वेव्स यूज करते हैं, अल्ट्रासाउंड में कोई रेडिएशन नहीं है, और MRI में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यूज करते हैं सर। একদম খুব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আপনাদের জানিয়ে রাখি যে আরেকটা কথা ডাক্তারবাবুকে আমার ভীষণ জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করছে যে बहुत सारी आदमी का गलतफहमियां तो है जो इस बारे में अगर बताए क्या क्या गलतफहमियां है ये एक्सरे वगैरह वगैरह से? सर गलतफहमी तो मुझे लगता है कि एक तो ये रेडिएशन वाला है,
प्लस दूसरा ये होता है कि मतलब वो लोग सोचते हैं कि प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो हमारे बच्चे को कुछ खराब हो जाएगा, सोनिक वेव्स। ये मैंने बहुत प्रेग्नेंट लेडी से सुना है कि ज़्यादा बार क्यों दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। वो सोनिक वेव्स बच्चे को कुछ नहीं, एकदम मतलब 0% रिस्क है। और सर जो बाकी है वो बायोप्सी वगैरह में दर्द का रहता है, तो उसमें हम लोग सर लोकल एनेस्थीसिया दे करके करते हैं। हम लोग मिनिमम चाहते हैं कि पेशेंट को प्रॉब्लम्स हो, और हमारे डिपार्टमेंट में तो एकदम सर पेनलेस सब कुछ है कोई दर्द नहीं होता कोई पेनलेस नहीं है। बस स्कैन करते हैं हम लोग, सारे दर्द का सॉल्यूशन देखते हैं, हाउ टू सॉल्व इट। अगर किसी ने एक्सरे व जो कोई भी हो डायग्नोसिस सेंटर के पास जाए किसी के लिए, तो उस मरीज को पहले आप क्या सलाह देंगे? कोई जाए तो क्या, सब तो डरते हैं भाई, हाँ देखो हमको ऐसे हो गया। हाँ। क्या डरना चाहिए आपको? एक बात बताइए। किसी को एमआरआई करना है, किसी को जैसे अल्ट्रासाउंड करना है, किसी को एक्सरे करना है, उसको वो डरता है, ज़्यादातर डरता है। इसके पहले एक आप एक डॉक्टर है, इसी के बारे में अगर आप इसके आगे भरोसा देंगे जे भाई इसमें कोई डरने की बात नहीं है। काउंसलिंग तो सर हम करते ही हैं। प्लस सर हमारे जो क्लिनिशियंस हैं वो भी काउंसलिंग करते हैं, वो बताते हैं ये क्यों जांच जरूरी है, आपको क्यों कराना चाहिए। और प्लस दर्द तो होता नहीं है, तो ये भी है। और रेडिएशन का तो सर हमने बहुत चेक लगा रखा है, तो वो भी प्रॉब्लम नहीं है सर। ऐसा है कोई लक्षण दिखाई नहीं देता है, किसी का शरीर में कोई रोग का लक्षण दिखाई नहीं देता है, तो मगर उसको डायग्नोसिस में जब रेडियोलॉजिस्ट को पास जाता है सब दिखाई देता है। ये कैसे बहुत सारे रोग ऐसे हैं, थोड़ा सा अगर बताइए। सर मैं बोलूँगी कि ये तो बिल्कुल सर सच है कि बहुत सारे लोग अपने शरीर को इग्नोर करते हैं, काम करते रहते हैं। हम लोग भी इग्नोर करते, काम करते रहते हैं। छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है तो यहाँ से तो फार्मेसी से टैबलेट लेके खा लिया, पर जब सर वो बड़ी प्रॉब्लम बन के आपके सामने आती है, तब आप ऑलरेडी आईसीयू बेड पे होते हो, तब जाके आपको समझ में आता है। पर व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड ऑल दिस दैट वी आर डूइंग इज अर्ली डायग्नोसिस। इट्स रेडियो डायग्नोसिस, सो वी आर डायग्नोसिंग इट अर्ली। आपका सिम्टम आने से पहले ही हम लोग बता दे रहे हैं सर ये आपका पॉसिबिलिटी हो सकता है, ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है, ताकि आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें। आप कोई इमरजेंसी में आपको कुछ मजबूरी में ना करना पड़े, आप पहले ही करके शांति है जिंदगी में। एकदम सही बात है। और एक बात हम पूछना चाहते हैं, जो एक इसी दौरान जाने के बाद अगर किसी ने चाहा एक बार, दो बार, कितना बार चाहिए ये जो प्रक्रिया है रेडियोलॉजिस्ट के पास? सर ऐसा तो शीघ्र पहचान के लिए कुछ इमेजिन जांच करने के लिए कितने बार कराना चाहिए? सर जैसे धरिए किसी का हाथ फ्रैक्चर हुआ, किसी का पेट का बीमारी हुआ, ये कितना बार करना चाहिए? इसके बारे में क्यों लिखा है जो एक बार एक प्रक्रिया में गया हुआ, उसको ठीक से नहीं आया, डॉक्टर फिर रिटर्न कर दिया, देखो ये तुम्हारा ठीक नहीं हुआ, वापस किया, कितने बार करना चाहिए? बार सर मैं 2-3 चीज इस पे क्लियर करना चाहूँगी। एकदम वही बात। सबसे पहले सर हम लोग जो है जैसे अल्ट्रासाउंड भी हम लोग करते हैं सर, अगर उसमें पेशेंट एकदम रात को कुछ हैवी मील मटन चिकन सब नॉनवेज खा के आ गए, अच्छा, मॉर्निंग में उसका गॉल ब्लैडर सिकुड़ा रहता है, अच्छा, सर हम देख ही नहीं सकते। अब जो हम देख नहीं सकते सर, हम उसके बारे में कमेंट कैसे कर सकते हैं? एकदम। तो हमारा होता है पेशेंट प्रिपरेशन। दूसरा सर हमारा होता है कोलोनोग्राफी, जो इन्वेजिव कोलोनोस्कोपी होता है, दैट वी डू नॉन इन्वेजिवली वाया ग्राफी। तो उसमें सर पेशेंट बाउल प्रिपरेशन लगता है, हमें उससे जो है डल्कोलैक्स और ये सब लैक्सेटिव दे करके बाउल को क्लियर करना है, ताकि आपका कोई जगह पे अल्सर हो या फिर कोई जगह पे आपका कैंसर हो तो वो हमें क्लियरली दिख जाए। तो अगर सर वो लोग क्लियर करके नहीं आएंगे तो हमारा तो स्कैन सर सब ऑप्टिमल हो गया, हमारा स्कैन सही से नहीं आया, तो हम कैसे उस पर कमेंट करें? तीसरा चीज़ है सर एमआरआई में मोशन, जो बहुत कॉमन है, और सीटी में भी, थोरैक्स में जब चेस्ट हमारा ब्रीथ करता है तो हमारा ऑटोमेटिक इनवॉलेंटरी मोशन आता है सर। हमें उसको बोलना है सांस बंद करके जितना देर रख सकते हैं, और उसी फेज में जब सर वो स्टिल है तो टेक्नीशियन को भी ध्यान रखना होगा हमारा, अच्छा, कि जो इंस्पिरेशन है ऐसा बंद करके रखा है, उसी फेज में सर हमें वो स्कैन करना है। अच्छा, हाँ, मैं बहुत समय, एक मुहूर्त की बात सर, मुहूर्त है बहुत ज्यादा एकदम एक्यूरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ,
हम लोग मिस नहीं कर सकते, वरना सर सब ब्लर हो जाएगा, वो सांस ले रहे हैं, फिर हमारा स्कैन क्लियर नहीं आता। तो सीटी में तो सर हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि स्कैन इज 10 seconds to 5 minutes, बट एमआरआई सर 20 minutes। हाउ पीपल, मतलब 20 मिनट तक तो कोई होल्ड नहीं कर सकता सर। हाँ। तो उसमें सर हमने टेक्निक्स बनाए हैं, मोशन कंट्रोल एल्गोरिदम्स बनाए हैं हमारे, वो सारे एल्गोरिदम मिल करके, टाइमिंग मिल करके, मिक्स एंड मैच करके वी डू दैट। एंड इन केस हेल्थ वर्ल्ड हॉस्पिटल में वी इंश्योर दैट कि मतलब इन केस हमारा कोई स्कैन में मोशन आ रहा हो या कोई आर्टिफैक्ट आ रहा हो, हमारे क्लिनिशियंस को कोई डाउट हो, देन हम लोग उस पेशेंट को दोबारा बुला करके या फिर उसी समय हम लोग उसका री स्कैन लेते हैं, ताकि क्लैरिटी हो। हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते कि मतलब हमें डाउटफुल हो या हमारे रिपोर्ट में वेग रिपोर्ट हो, तो ये हम नहीं करते। इसीलिए वी हैव टू बी वेरी सर्टेन अबाउट इट। একদম আপনারা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা আলোচনা নিয়ে কিন্তু আজকের এই অনুষ্ঠান দেখছেন। আপনারা আকসার আপনাদের বাড়িতে এইরকম প্রচুর রিপোর্ট আছে, যা প্রত্যেক বাড়িতে ডায়াবেটিসের রুগী, যদি প্রেশারের রুগী এরকম দেখা যায়, তাহলে দেখবেন তাদের কাছে একটা রিপোর্ট প্রত্যেক মাসে একটা চেক করতে হয়, কিন্তু সেই রিপোর্টের নিচে একজনের সুন্দর স্বাক্ষর থাকে, যিনি পুরো রিপোর্টটা দেখেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, যার ক্ষেত্রে ডাক্তারবাবুরা একটা নির্দিষ্ট জায়গায় চেক করতে বলেন বা পরীক্ষা করতে বলেন। আপনারা ব্যাঙের ছাতার মতো পাড়ায় আশেপাশে বহুত এরকম সেন্টার হয়ে গেছে, ডায়াগনোসিস সেন্টার, সেখানে আপনারা চলে যান। সেইখানে কিন্তু একজন প্রকৃত ডায়াগনস্টিক মানে রেডিওলজিস্ট ডাক্তারের কিন্তু অভাব আছে। সেখানে সাধারণত কোনো একজন টেকনিশিয়ান তার উপর সই করে দেয়, ডাক্তারের সইটা একজন নির্দিষ্ট একজনের থাকে। আমি দায়িত্ব নিয়ে এই অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে বলছি, তবু বলছি যে আপনি যখন আপনার এই ধরনের পরীক্ষা করাবেন, তখন নিশ্চয়ই একটা ভালো প্রতিষ্ঠান থেকে করাবেন, যেখানে একজন এক্সপার্ট ডাক্তার থাকে, রেডিওলজিস্ট ডাক্তার থাকে, এবং তিনি কিন্তু সবটা দেখে তারপরে রিপোর্টে সই করে। যেমনটা হয় হচ্ছে এই মুহূর্তে আসানসোলের হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটাল, যেখানে পরিকাঠামো সর্বোত্তম শুধুমাত্র আপনার জন্য। পরবর্তী প্রশ্ন একটা যাব मैडमेर কাছে। मैडम, ये जो रेनेसास चल रहा है, एक रेडियोलॉजी का रेनेसास चल रहा है, हर दिन इसका परिवर्तन हो रहा है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। हाँ तो सर। इसमें तो आपको सरासर हाँ इसको इसके हाँ ऊपर सर। नजर रखना पड़ता है। जी कितना सर, सर? हमें सर हम कॉन्फ्रेंसेस जाते हैं, हम नई टेक्निक सीखते हैं, हमारे ऑनलाइन कोर्सेस होते हैं। मतलब यह नहीं कि हम सीख लिया बस, नहीं, हमारा ऐसा ऐसा नहीं वैसा है। बिल्कुल नहीं है। हमें मतलब अभी तो सर एआई भी आ रहा है, इसी के बारे में पूछ रहे आर्टिफिशियल हैं। इंटेलिजेंस है, तो वी हैव टू बी स्किलफुल इनफ टू मेक एआई टू आवर यूज। अगर एआई आ जाएगा तो इसमें कुछ सुधार सर ह्यूमन ब्रेन इज इररिप्लेसेबल सर, वी हैव टू बी लाइक एआई को हमें यूज़ करना आना चाहिए। लाइक आई यूज़, अभी मैं एक एआई सॉफ्टवेयर आई यूज़, उस पर मैं माइक से रिपोर्टिंग करती हूँ, एंड इट इज़ फास्टर देन इफ़ आई टाइप इट, सो दैट वे आई एम इम्प्रूविंग माई मतलब वर्क एफिकेसी। একদম आपको আপনাদের বাতিয়ে দিই, এআই মানে শুধুমাত্র আপনার মোবাইলে তৈরি করা ভিডিও নয়। এআই একটা টেকনোলজি, যে টেকনোলজিটা আগামী দিনে একটা বিপ্লব আনছে, যেটা রেনেসাস বিশাল বড় একটা পরিবর্তন আনছে। কতটা এআই, কতটা এই মেডিকেল দুনিয়ার সাথে মানে এই ডায়াগনস্টিক্স সঙ্গে কতটা সম্পর্কযুক্ত, একটু আপনাদেরকেও পরিষ্কার করে দেবে ম্যাডাম। ম্যাডাম, এআই कितना हेल्प करेगा आगामी दिन, पहले इसके बाद? सर अभी तो सर जैसे जर्मनी में है और लाइक मैनी जो हमारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, दे हैव इन्वेस्टेड सो मच इन एआई सर एवरीवेयर, सॉफ्टवेयर से लेकर के एवरीथिंग। सो रेडियोलॉजी इज एवरीथिंग, मतलब कितना क्लैरिटी ऑफ इमेज हो सकता है, सो द क्लैरिटी विल बी इम्प्रूव्ड बाय दिस, एंड देन रैपिड रिपोर्टिंग इज देयर, सो दोज टू थिंग्स we can improve with AI, but definitely आप AI पे ट्रस्ट करके अपने रिपोर्ट्स नहीं बनवा सकते। That will be inaccurate एकदम, मतलब क्यों, जैसे गूगल में सर्च करते हैं ना, सर मेरा पेट दर्द हो रहा है, गूगल विल टेक यू पेट दर्द का कॉज इज ट्यूमर, लाइक दैट AI विल टेक यू टू सम अदर डायरेक्शन। एकदम आप जैसे बोले, इसमें एक क्वेश्चन मेरे पास आ गया, एकदम সত্যি কথা বলছি। সাম্প্রতিককালে আপনারা সবাই মোবাইলে ব্লাড টেস্ট, প্রেশার টেস্ট করেছে। ये जो मोबाइल में हर लोग ब्लड टेस्ट कर लेते हैं, ये क्या सही लगता है? आप एक डॉक्टर होकर आप क्या बताएंगे, क्या सूचित करेंगे दर्शक से? सर मतलब सर ये तो मतलब किसी को भी कॉमन सेंस है कि जब तक आप ब्लड निकाल के नहीं दे रहे हो, आपका कैसे सर जांच हो सकता है? फेस स्कैन्स से आपका ब्लड कैसे सर निकल सकता है? सर मैं इस पे मतलब
কত বড় একটা ভ্রান্ত ধারণার মধ্যে আপনারা আছেন। আমি বলছি এই অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে, এই প্রোগ্রামকে দৌড়ান, আমি বলছি আপনাদের সবাইকে, এরকম আমি অন্তত 30% পিপল পাবো যাদের মোবাইলে এই অ্যাপসটা লোড করা আছে, আর তারা এই অ্যাপসটা দেখেই ওই ক্যামেরার সামনে হাতটা রেখেই আপনি ভাবলেন আপনার সুগারটা মাপা হয়ে গেল, আপনার প্রেশারটা মাপা হয়ে গেল। ইম্পসিবল, এটা হতে পারে না। এটা একটা অ্যাপস, তারা এটা করে তাদের ব্যবসা করে খাচ্ছে। আদতে আপনার কোনো উপকার হবে না। একটা পরীক্ষার জন্য অবশ্যই, যদি সুগার বা আদার্স কোনো রোগ হয়, তাহলে অবশ্যই আপনাকে কিন্তু একটা ডায়াগনস্টিক সেন্টারের উপর ভরসা করতে হবে, আর অবশ্যই সেখানে একজন ডায়াগনস্টিক ডাক্তার, একটা খুব ভালো একটা ডাক্তার দরকার, রেডিওলজিস্ট ডাক্তার দরকার, যে আপনারা জানেনই না হয়তো সেখানে একজন ডাক্তার থাকে বা সেগুলো পরীক্ষা করে। একটা ব্লাড सैंपल থেকে क्या क्या आप लोग कर सकते हैं, मैंने कौन सा बीमारी निकाल सकते हैं? सर ब्लड सैंपल मतलब हम लोग तो ब्लड सैंपल्स नहीं लेते सर, वी हैव टू टेक द स्पेसिमेंस। ना आप लोग नहीं लेते हैं, आप जब देखते हैं उसमें क्या क्या हाँ, निकाला? सर वी हैव टू, सबसे पहले सर हम लोग जो स्कैन्स करते हैं उसको हम लोग क्लिनिकली कोरिलेट करते हैं, तो वी सी द ब्लड इन्वेस्टिगेशंस। जैसे पैनक्रेटाइटिस है, हमें स्कैन में बिल्कुल पैनक्रेटाइटिस आ रहा है, तो हम लोग अमाइलेज लाइपेज टेस्ट करवाते हैं, उसके बाद वो एकदम कंफर्म हो जाता है। वैसे ही मैंने बोला एनोमली स्कैन में मैंने पहले भी मेंशन किया है, हमें लग रहा है कि सर ये बच्चा डाउन सिंड्रोम से ग्रसित हो सकता है, तो हम उसमें डबल मार्कर और ट्रिपल मार्कर टेस्ट करवाते हैं। वो मार्कर्स अल्फा फीटोप्रोटीन और ये सब मिला करके कंफर्म हो जाता है क्लिनिशियन को कि सर ये मतलब प्रॉब्लम है इसमें, तो वी कैन यूज इट एज अ लाइक कंफर्मेटिव थिंग। इमेज एक मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, सो हम लोग 2-3 मोडालिटी को मतलब कॉन्ग्रीगेट करके वी टेक दैट मतलब कॉन्फिडेंस कि ये है। মানে যতটা সহজ ভাবছেন ততটা সহজ নয়, বিষয়টা খুব জটিল। যেটা বলছে শুধুমাত্র আপনারা যেরকমটা দেখেন সেরকমটা নয়, সেটা হচ্ছে सभी डॉक्टर को दिखाई देता है, पेशेंट को देखते हैं सभी डॉक्टर, मगर ये जो रेडियोलॉजिस्ट ये तो पर्दा के पीछे रहते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता है कि एक महत्वपूर्ण काम आप कर रहे हैं? आप लोग क्यों पर्दा के पीछे? सर पर्दा के पीछे नहीं रहते सर हम लोग, ये सर गलत बात जैसे हम बोल रहे हैं। मैं बताती हूँ आपको सर, हम लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं, हमारे बगल में पेशेंट रहता है, हाँ, हम तो पेशेंट से बात कर रहे हैं, एकदम कहाँ पर्दे के पीछे है सर? नहीं, बोलने का ये तरीका सर पहले जो है ना, पहले रेडियोलॉजी इतना डेवलप नहीं था, इतना विकसित नहीं यही था। बोलने के लिए हाँ सर, तो तभी तक क्या था, एक्सरे था, और एक्सरे रिपोर्टिंग डॉक्टर को रेडियोलॉजिस्ट माना जाता था। पर आज ऐसा नहीं है सर, हम इंटरवेंशन करते हैं, हम बायोप्सी लेते हैं, हम सब कुछ वैसा ही कर रहे हैं जैसा मतलब एक क्लिनिशियन और एक सर्जन कर रहे हैं सर। और पूरा निर्भर करता है आपके ऊपर। हाँ, एक सर्जन को भी निर्भर करता है हाँ, आपके सर, हम ऊपर। लोग एक ডাক্তার अगर कोई एग्जामिन करे, माने एक কোনো ऑपरेशन করতে হবে, देन से भी करता है हाँ आपका सर, हम रिपोर्ट लोग तो आई ऑफ द डॉक्टर्स है ही, वी आर द आईज, वी आर द हॉक आईज। একদম পরিভাষায় বাংলায় যাকে বলা হয় ডাক্তারদের চোখ। আসলে ডাক্তাররা যা কিছু দেখে তা কিন্তু একটা রেডিওলজিস্টের পরীক্ষার পরই দেখতে পায়, কারণ ডাক্তারদের পক্ষে সম্ভব না। খুব ক্ষুদ্র খুব সূক্ষ্ম সেখানে নার্ভ টিস্যুগুলোকে তারা দেখে তার পরিস্থিতি সামান্য একটা, আপনারা তো জানেন, সামান্য একটা যখন দুর্ঘটনা ঘটে তখন সেই রুগীকে যখন আপৎকালীন একটা হাসপাতালে নিয়ে যায়, তখন কিন্তু তার প্রাথমিক যে চিকিৎসাগুলো চলে, তার প্রাথমিক যে সমস্ত পরীক্ষাগুলো চলে, যেগুলোর দ্বারা জটিলতাগুলো আস্তে আস্তে প্রকাশ পায়, সেটা কিন্তু একটা রেডিওলজিস্টই পারে। তবে আমার প্রশ্ন এইখানে নয়, আমার জানি আমার অনুষ্ঠানের প্রায় আমরা শেষ, অনেকটা কাছাকাছি, एकदम शेष में है, तो इसी में कुछ सारे प्रश्न अभी है, जिनको बीच में बहुत सारे ऑडियंस अभी है, हर टाइम तो खुला नहीं रहता है, तो हम लोग पहले से একদম যারা একদম প্রথম এই অনুষ্ঠানে এখন এইমাত্র হয়তো খুলে বসেছেন, বা যারা এই অনুষ্ঠানের একদম শেষ পর্বে এসছেন, তাদেরকে আমি বলে দেই আজকে আমাদের অনুষ্ঠানের বিষয় হচ্ছে একজন রেডিওলজিস্ট কি এবং কেন। আমি আবার আপনাকে বলছি, যেটা হচ্ছে रेडियोलॉजिस्ट की क्या है और क्यों कहाँ इस्तेमाल होता है। अगर पहले से हम लोग प्रोग्राम इसीलिए बोले, बीच में कोई ऑडियंस क्या होता है वो फिर आता है, इसी बारे में फिर से हम लोग प्रोग्राम का शुरुआत से जाएंगे। सर हाँ, मैं तो यही बोल रही हूँ सर कि फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन अभी इंडिया में है रेडियोलॉजी, और इट्स लाइक कि हम लोग एवरीथिंग
कॉज, हम लोग एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है सर, हम लोग आपको बता सकते हैं कि आपको किस वजह से एक प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या है, आपको सेकंड थॉट्स नहीं है, उसी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में आपको जाना है। आपको कोई इतना सारा दवाई नहीं खाना है, इतना सारा एंटीबायोटिक्स नहीं खाना है। हम लोग बोलेंगे सर ये फंगल निमोनिया है, बैक्टीरियल निमोनिया है, या फिर ये कैंसर है, तो सर आपको उसी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में उसी जगह आपको रिफ़र किया जाएगा। हमें रात में कॉल आता है, हमें मतलब हम सबसे पहले हम जाते हैं ताकि वो बोलते हैं कि सर पेट में दर्द है या स्क्रॉटल पेन है या फिर प्रेगनेंसी में दर्द है, तो क्यों हो रहा है, तो हम एक टॉपिक बताते हैं, हम सब कुछ बताते हैं। तो आपको फिर दूसरा डॉक्टर जो है वो आपको उनके स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में लेकर के जाता है। आपका स्पेसिफिक गाइडलाइन बेस्ड ट्रीटमेंट होता है, रादर देन कि 4 जगह घूम रहे हैं, दरवाजे छान रहे हैं। ये क्या, अभी वैसा नहीं है सर। अभी डायग्नोसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी आर द फर्स्ट लाइन डायग्नोस्टिशियंस हियर। একদম পরিভাষায় যেটা হচ্ছে রোগ নিরাময়ের একটা বড় জায়গা আপনাদের মহত্বপূর্ণ, এটা মনে রাখতে হবে। আর রোগকে পুষে না রেখে একটা পরীক্ষাই বলে দিতে পারে যে আগামীকাল কি হতে পারে। আজকাল হাসপাতালে যে সমস্ত সাধারণ যন্ত্রপাতি, যে एक्सरे वगैरह जो है वो और अलग सा स्पेशल हॉस्पिटलाइज में जो है, ये दोनों में क्या फ़र्क है, आप बता सकते हैं? हाँ सर, मतलब सिर्फ आप कहीं से करा लिया तो आपको फिर उसके बाद रिपोर्टिंग भी सर वैसे ही मिलेगी, पर अगर आप स्पेशलिस्ट से कराते हो यू विल गेट एकदम, मतलब यू विल गेट द परफेक्ट डायग्नोसिस एंड देन यू कैन बी एश्योर कि ये नहीं है पर ये है। सो आप कॉन्फिडेंस हो सकते हो। तो आप उस ऑर्थोपेडिक का प्रॉब्लम है तो आप ऑर्थो में जाओगे, आपको स्पाइन का प्रॉब्लम है स्पाइन में जाओगे, ब्रेन का प्रॉब्लम है ब्रेन में जाओगे। पर आपको अगर ऐसा पता ही नहीं चल रहा है, किसी को होता है वेग, हमको हर जगह पेन हो रहा है, हमको हर जगह ये हो रहा है, तो कौन बताएगा। एक बात है जैसे धरिए इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आम जो मोहल्ला में जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एक बेस्ट क्वालिटी होना चाहिए। हाँ सर। नहीं तो आपको बीमारी पता नहीं चलेगा। वही सर, पता ही नहीं जैसे चलेगा। आप लोग जहाँ से कर लिया एक कर लिया, वो नहीं, आपको करना है अच्छी जगह पे, क्योंकि इंफ्रास्ट्राक्चर পরিকাঠামো যদি ভালো না হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু सर योर हेल्थ इज योर वेल्थ, यू हैव टू इन्वेस्ट इन योर हेल्थ। आजकल के ज़माने में अगर आपके पास हेल्थ नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। तो आपको अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में जा कर के सर, जहाँ पे सारी सुविधा उपलब्ध हो वहाँ पे ही दिखाना चाहिए, रादर देन आप कुछ भी कर लो अपने साथ, ये तो बाद में प्रॉब्लम होता है। और एक बार जाएंगे, बहुत सारे प्रश्न है। रेडियोलॉजिस्ट में कैंसर, फोफरे, ये जो है हमारे, इसमें क्या काम करता है, मैंने कैसे पता चलता है इसी के दौरान? सर कैंसर में तो मैंने बताया जैसे कि 4 स्टेजेस होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अर्ली स्टेज में जाएंगे कि कैंसर है या नहीं है। अगर है तो कितना मार्जिन उसने कवर किया हुआ है। जैसे ब्रेस्ट होता है, उसमें सर अर्ली डायग्नोसिस अगर हमने ब्रेस्ट का बता दिया कि ये हमें बायरैट्स के तहत हमें कैंसरस लग रहा है, उसको उसी क्षण वहाँ से निकाल करके अगर आप रख दें तो रिकरेंस बार होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। চিকিৎসা যদি আপনার চলতে থাকে সেক্ষেত্রেও কিন্তু রেডিওলজি একটা বড় কাজ করে। আপনি যখন একজন রেডিওলজি ডাক্তারের কাছে যাবেন, সে তো বারবার আপনার পরীক্ষাটা করবে। কখন করবেন? একবার আগে করলেন, চিকিৎসার পরে একবার করলেন, আপনার ট্রিটমেন্টের বাদে একবার করলেন, সেটা স্থিতিটা কি অবস্থায় আছে এবং आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो कि नहीं, आपका कीमोथेरेपी आप पे काम कर रहा है कि नहीं, वो ट्यूमर साइज में घट रहा है कि नहीं, একদম পরপর এইটা কিন্তু একটা বড় এফেক্টের কাজ করে। দ্বিতীয় হচ্ছে ফোফরে, যে আমরা বলছি যে আমাদের যে এই ভেতরে, এটার ক্ষেত্রে কি কাজ করে, রেডিওলজিস্ট কতটা দেখতে পারে, সেটা কিভাবে এমআরআইতে না আপনার এক্সরেতে কিভাবে দেখবে? सर एमआरआई फॉर श्योर सर, वी हैव टू डू, मतलब सबसे पहले हम लोग डायग्नोस करते हैं तो हम लोग मैमोग्राफी इज द स्क्रीनिंग मोडालिटी, इट इज अ स्क्रीनिंग मोडालिटी सर ब्रेस्ट। फिर हम लोग स्क्रीनिंग करने के बाद जो हम लोग की यंग एज होती है तो 2 जीन्स होती है सर, वो ब्राका जीन्स होती है, BRCA1 एंड BRCA2। तो वो आपकी फैमिली में से आ रही है आपके पास, आपको पता ही नहीं है, जेनेटिक है, जेनेटिक। सो यू डोंट नो कि आपका ये है, और उसके बेसिस पे सर आपके ट्रीटमेंट होता है कि उसके बेसिस पे आपका सर ये होता है कि उसके बेसिस पे आपको मतलब हार्मोनल ट्रीटमेंट देना है या कीमोथेरेपी, वो भी स्पेसिफिक होता है सर। जैसे कि आपको HER2 न्यू अगर आपका पॉजिटिव है तो आपको उसके
तहत के उसके टाइप के ड्रग्स दिए जाएंगे, जबकि अगर आपका नेगेटिव है तो आपके उसके दूसरे टाइप के ड्रग्स दिए जाएंगे, तभी आप सेंसिटिव होगा वो। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है सर। रेडियोलॉजी, हम बायोप्सी ले सकते हैं ब्रेस्ट का, हम वो लोग ट्यूमर टिश्यू थोड़ा सा निकाल करके उसको हम लोग पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर्स के पास भेजते हैं, वो लोग वो स्लाइड देखते हैं, वो स्लाइड पे वो बताते हैं ये कौन से टाइप का ब्रेस्ट कैंसर है। अच्छा। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर लाइक DCIS, लॉबुलर कार्सिनोमा, इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा, सो वो सबका ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिफर्स। फ्रैक्चर और लिगामेंट, इस बारे में थोड़ा बताइएगा। हाँ तो सर फ्रैक्चर तो सर एक्सरे पे दिख जाता है, बट सर अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर है, कोई मतलब एक फ्रैक्चर होता है जो जुड़ जाएगा आसानी से, और एक फ्रैक्चर होता है जो मतलब इतना दूर तक डिस्प्लेस हो गया है, फट गया है, पूरा बोन आगे पीछे हो गया है आपके। तो आप आगे पीछे वाले बोन में बहुत सारी चीज़ें, आपके बगल में जो लिगामेंट्स है, टेंडन्स है, मसल है, आपकी आर्टरीज है, ये सब चीज़ें अगर आपकी मतलब हुई है कि नहीं है, वो हम लोग एंजियोग्राफी करते हैं सर। उसमें हम लोग CT एंजियोग्राफी करते हैं और हम लोग MRI करते हैं। तो मसल में हेमाटोमा है, लाइक अभी क्रश इंजरी हुई थी, अभी हमारे हॉस्पिटल में आई थी, उसमें पेशेंट का यहाँ से यहाँ तक गाड़ी गिर गई, उसके ऊपर मशीन गिर गया कुछ, तो उसका पूरा लेग में पूरा उसका न्यूरोपैथी आ रहा था। तो हमने MRI पे डिटेक्ट किया कि वो शियाटिक नर्व का कोर्स में जो है वहाँ पे फ्लूइड जमा हो गया है, उसकी वजह से वो नर्व का इन्फ्लेमेशन हो रहा है। तो हमारे न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर को बोला गया, फिर हमारे न्यूरोलॉजिस्ट ने उनको स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दी, तो वो ठीक हुआ सर। ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। একদম বুঝতে পারছেন বিষয়টা, কিন্তু মানে কত সহজ হয়ে গেছে, এই ইজি हो गया, जो ट्रीटमेंट कितना इजी हो गया, ইজি हो गया। বহুত মানে এখন যে কোনো একটা দুর্ঘটনা থেকে বা কোনো একটা ঘটনা ঘটার পর কিন্তু ভেঙে পড়ার মতো কিছু নেই, কারণ তার চিকিৎসা আছে। আর এই মুহূর্তে যে কোনো রোগের যে কোনো রকম চিকিৎসার সর্বোত্তম জায়গা কিন্তু আসানসোলের হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটাল। একদম পরিকাঠামো, সর্বোত্তম পরিকাঠামো এই মুহূর্তে রয়েছে। পেট সিটি স্ক্যানের মতো একটা জায়গা, যেটা একদম বলা যায় অত্যাধুনিক, এটারও একটা বড় ফাংশন তো রয়েছে। यस सर, पेट सिटी है सर हमारे पास, और हमारे न्यूक्लियर मेडिसिन के भी डॉक्टर भी हैं, और प्लस जो है उसमें जो है मतलब आपको स्टेजिंग ऑफ कैंसर बताते हैं। हाँ, कि कहाँ कहाँ इट हैज़ गॉन, only limited to one organ like liver cancer sir, so it is limited to liver or it has gone to the lungs and beyond it has gone to the brain, so we can take exactly मतलब कहाँ कहाँ गया है। तो आई मतलब फिर आप उसके लाइन से जो है आपके ऑन्को सर्जन जो है, ऑन्कोलॉजिस्ट जो है, वो डिसाइड करते हैं कि सर कैसा ट्रीटमेंट लाइन होना चाहिए। एक रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर, एकदम আপনাদের প্রোগ্রামের শেষে বলছি, एक रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर होने के बारे में आप हैं, इसीलिए एक वार्ता, जैसे एक मैसेज आपको ऑडियंस को देना है, लास्ट टाइम एक मैसेज दीजिए जिस मैसेज से ऑडियंस हमारा सूचित हो, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। मैं तो बस यही बोलना चाहती हूँ कि हेल्थ इज़ वेल्थ। आज के ज़माने में अगर आपके पास हेल्थ है तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हो, और अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपकी वही एक प्रॉब्लम बन के रह जाती है, आप चारों तरफ उसी प्रॉब्लम के घूमते रहते हो। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट एंड यू हैव टू मीट द स्पेशलिस्ट। अभी इंडिया हैज़ द बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी, वी हैव द मतलब आप you can have मतलब any time treatment, that is not the case with NHS UK or US, they will give you 40 days 1 year ऐसा करके अपॉइंटमेंट देते हैं, बट इंडिया में आपके पास है अपॉर्चुनिटी, देन यू ग्रैब इट। आप स्पेशलिस्ट के पास जाओ, अच्छे हॉस्पिटल्स के पास जाओ, क्योंकि उनके पास हर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, आपको कोई गुमराह नहीं करने वाला है, आपको जो प्रॉब्लम है उसके लाइन में ही ट्रीटमेंट होने वाला है, तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेगा एकदम। और हम लोग जो है, हम लोगों को ये बताना जिम्मेदारी है, हम लोग लेते हैं कि मतलब किस वजह से हो रहा है, तो हम लोग डायग्नोस करते हैं और देन वी गिव इट टू द क्लिनिशियंस एंड सर्जन्स एंड दे ट्रीट इट अकॉर्डिंगली। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে। সত্যি কথা বলতে আজকে আমার খুব ভালো লাগলো যে আজকে এই ধরনের একটি অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে আপনাদেরকে বোঝাতে পারলাম। তবে একটা কথা বলি, যে আজকে অনুষ্ঠান শেষ করবার আগে যেটা বলবো, শরীর সুস্থ থাকতে থাকতে যখন দেখছেন সামান্যতম শরীরের বিঘ্ন ঘটছে, তখন কিন্তু একটা ছোট্ট চেক আপই বদলে দিতে পারে আপনার আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, দেখতে থাকুন হেলথ এক্সপ্রেস। নমস্কার।
এই হলো ডেডলাইন কমিউনিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড। আপনারা দেখছেন এক্সপ্রেস নিউজ, খবর নেয়, খবর দেয়।